Hello everyone, welcome back to the channel. So in the last video we completed the half of the chapter Nature and Significance of Management. We completed up to the topic management as an art, management as a science, management as a profession. And we concluded that management is on the path of becoming a profession. So now it is presently all the features of profession are not present in management, but very soon, maybe next decade, up to the next decade, these will be included in the management with statutory backing. Now, today in this video, we will start with the next topic of this chapter, that is levels of management. So, as you see the heading, there are three major levels of management: top level, middle level, and operational level, or we can say lower level. So, this is a pyramid which is showing that the management has three levels. So levels of management means the different categories of managers from the lowest to the highest on the basis of their responsibilities, authorities, and status. So on the on every level we can say that there are different categories of managers. So as we have already learned that management is not a single individual organization, so it refers to a group of persons, and in companies we can say large number of persons are employed and placed at different places to perform different managerial activities. And to carry on these activities, employees are given necessary authority and responsibility. And so this chain of different employees is divided into the three levels that we have already given the names, that is top level management, middle level management, and the supervisory level, or we can say operational level or lower level of management. So we will discuss all these levels of management one by one. So first of all, let us start with the top level management. So in the top level management, it consists of the senior most executives, or we can say the chairpersons, we can say the chief executive officers, chief operating officers, or equivalent, and their team. Like top level management, we can say it consists of chairman, board of directors, managing directors, and इन्हें क्या बोला जाता है, इनको फंक्शनल हेड्स भी बोला जाता है. एंड इन्हें कहा जाता है कि ये ब्रिलियंट माइंड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. एंड ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, ये बहुत ही क्रिशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, विच इज़ असेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल. So ये प्लान मेकर्स होते हैं, दे आर द ब्रिलियंट माइंड, और द वी कैन से these are the one who determines the objectives of the enterprise, or they frame the plans and policies. ये plans और policies बनाते हैं. then we can say कि ये सभी अपने organization के tasks को well परफॉर्म्ड करने में हेल्प करते हैं, वेलफेयर और सर्वाइवल देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. एंड दे ऑल्सो integrate the diverse elements and coordinate the activities of different departments. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो सभी के एफर्ट्स को, सभी एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं. एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके कॉम्प्लिकेशंस या इम्प्लीकेशंस जो है उन्हें देखते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव द लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी आउटसाइड वर्ल्ड या बिजनेस के बाहर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे मिलना, टॉप लेवल मैनेजमेंट उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं. लाइक गवर्नमेंट हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, मीडिया हो गए, सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, यही लोग जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इन्हीं के कंधों पर पूरी कंपनी चलाने का बोझ होता है. एंड ये अपनी पूरी लाइफ बहुत सारे
एफर्ट्स पुट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, एंड नो डाउट इनका टास्क जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम इनके सैलरीज और इनकम को देखते हैं, इनके लाइफस्टाइल को देखते हैं, बट इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, वो हमें समझना चाहिए। Now the next one is the middle level of management. So middle level of management के लिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सब के डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया. सो पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल. तो टॉप लेवल ने जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, उनके प्लान्स को अंडरस्टैंड करना और उनका एग्जीक्यूशन देखना. सो ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन. सो ये टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बिल्कुल सेंटर में होते हैं. सो दीज आर द linking pin between the top level and the lower level of management, and they also exercise the functions of top level for their department as they make plans and policies for their department. तो एक तरह से वो अपने डिपार्टमेंट के लिए फिर से प्लान्स और पॉलिसीज तैयार करते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट के लिए वही काम कर रहे होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो उन्हें करके दिया है, यानी कि प्लान्स बनाने का. तो ये सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, तो ये सारे इनके फीचर्स रहते हैं. और यहाँ पर मेन फंक्शंस जो आप समझें तो वो ये है कि ये पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं, स्ट्रेटजीज़ जो बनाई गई हैं टॉप लेवल के द्वारा, उन्हें किस तरह से अप्लाई करना है, कब क्या करना है, तो ये सारा काम जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखते हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स को और अपने सुपीरियर्स के बीच में ये लिंकिंग पिन का काम करते हैं. एंड ये भी इंश्योर करते हैं कि इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर इनके पास नेसेसरी पर्सोनल मींस नेसेसरी एम्प्लॉयज़ है कि नहीं. अगर उनको रिक्रूट करने की ज़रूरत है, सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, अपॉइंट करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को, तो ये काम देखते हैं. सो वी कैन से कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Now the next one is the lower level or the supervisory level. So in this level we can say consist of the supervisors, superintendents, foremen, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एट्सेट्रा. तो जितने भी आप बोल सकते हैं कि लोअर लेवल पर काम करने वाले आपके जो मैनेजर्स हैं उनके नाम हो गए सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स एट्सेट्रा. एंड एक्चुअली जो ये मैनेजर्स होते हैं, इस लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, दे कैरी ऑन द वर्क. तो काम एक्चुअली में यही कैरी ऑन करते हैं एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान्स टू टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए हुए पॉलिसीज़, प्लान्स, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको परफॉर्म करना, उन सारी एक्टिविटीज़ को, ये सारा वो काम देखते हैं. एंड देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड. तो उनके पास एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती है, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ से सिर्फ काम लेना है जैसे कि प्लान्स उन्हें बताए जाते हैं. सो दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स. तो काइंड ऑफ ये क्या करते हैं कि अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने वर्कर्स को बताते हैं, एंड जो रिज़ल्ट आता है, जो काम किए करके दिया जाता है, या जो भी उनके एम्प्लॉयज़ की या वर्कर्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, या उनकी हेल्दी रिलेशंस हैं कि नहीं आपस में, आपने कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी सेफ्टी देखना वर्कर्स की, या फिर ये कोशिश करना कि वो एक प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि नहीं. एट द सेम टाइम उनके मोराल को बूस्ट करना वर्कर्स के, अगर वो कहीं पर भी डीमोटिवेट हो रहे हैं तो उनके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करना, टीम स्पिरिट उनके अंदर बना के रखना, और ये भी देखना कि वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना करें, रॉ मटेरियल वेस्ट ना करें, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें. एंड सो kind of they are responsible for the quality and quantity of output and the loyalty of the workers also. तो ये सारे काम जो है वो लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स जो है देखते हैं. सो लेट अस कंक्लूड. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं. मिडिल लेवल क्या करते हैं, कीप्स ऑन फोकसिंग ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन. एंड लोअर लेवल फोकसेस ऑन directing and controlling as they give the directions to the workers. So this is all about
the levels of management. Now let us continue with the one more important topic of this chapter, that is the functions of management. So functions of management means, as we have discussed earlier, that management क्या है, it is a process. So process means एक sequence of steps है, step by step एक process को follow किया जाता है, एक order को follow किया जाता है. तो वो order क्या है, उन्हें functions of management यहाँ पे बोलेंगे. और ये एक बहुत ही sequence में चलने वाले functions हैं. तो planning, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो ये 5 इम्पॉर्टेंट आपके फंक्शंस हैं. इनको शॉर्ट में अगर याद रखना हो तो पोस्ट डी सी, POSDC. सो ऐसे इन्हें याद रख सकते हैं. सो रिगार्डलेस ऑफ द साइज एंड नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे काम कर रही है, क्या साइज़ है, क्या नेचर है, क्या टाइप का है, सभी मैनेजर्स को ये बेसिक फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करने ही हैं. So let us discuss one by one. So first function is the planning function. So planning का क्या meaning है? Planning means deciding in advance. तो जब हम future को एक advance में decide करके चलते हैं, एक advanced thinking लेकर चलते हैं, so deciding in advance means planning. And क्या decide करना है, that what to do, कि क्या काम करना है, how to do, when to do and who is going to do it, कि कौन करेगा, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और ऐसे कहाँ तक, वेयर वी वॉन्ट टू रीच, तो हमारा लेवल, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ तक है. एंड एवरी मैनेजर, हर मैनेजर का जो काम है, जो टास्क है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. एडवांस में ये सोच लेना कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे एंड हाउ टू एकम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव्स, और इन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कैसे करना है. एंड प्लानिंग जो है, इट इज़ द बेस फॉर all the functions, and we can say it is the first function, primary function or base function for all the other functions. So next one is organizing. तो organizing में आप बोल सकते हैं ये एक ऐसा function है जिसमें कि after setting up the plans, जब plan setup हो गए, then यहाँ जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, दे असाइन द ड्यूटीज़, ग्रुपिंग द टास्क, टास्क के ग्रुप्स बनाते हैं, ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज. तो किसको क्या अथॉरिटी देनी है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने हैं, रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान. तो कोई भी प्लान को कैसे कैरी आउट करना है, क्या डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या उनके यूनिट्स, सब यूनिट्स, ये सब कुछ तैयार करना. एंड देन वी कैन से setting up unorganizational structure means deciding the framework of working, how many units and subunits of डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कि कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, डिफरेंट का क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, हाउ मेनी पोस्ट्स और डेजिग्नेशंस, कितने पोस्ट आपको अप्लाई करवाने होंगे लोगों से, या डेजिग्नेशन कौन कौन सी आपको एलोकेट करनी है, क्या डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, अथॉरिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको क्या दी जाएगी. वंस दीज डिसीजंस आर टेकन, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स सेटअप. तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिसाइड किया जाता है who will do a particular task and where it will be done and when it will be done. So organizing, we can say, involves the grouping of the required tasks and into manageable departments और units. तो काम को किस तरह से departments में और units में divide करना है, यहाँ पर ये चीज़ clear की जाती है. Next one is staffing. So staffing means to get the right person at the right place. सो सही व्यक्ति को सही काम दिया जाए, उसके लिए उनकी रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनका ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, अपॉइंटमेंट करना, ये सारे काम जो है, ये सारे स्टेप्स जो है स्टाफिंग फंक्शन में आते हैं. एंड इट मीन्स दैट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़. तो यहाँ पर काम जो है वो इंटरचेंज नहीं होना चाहिए. हर काम, जो व्यक्ति जिस काम में कैपेबल है उसे वही टास्क दिया जाए, उसे वही जॉब दिया जाए, उसे वही अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि वो और अच्छे से अपने परफॉर्मेंसेस जो है वो अपने आप को प्रूव कर सके. एंड टाइम टू टाइम उनकी डेवलपमेंट करवाना, उनके लिए रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, देन उनके प्रमोशंस, उनके इंक्रीमेंट्स एक्सेट्रा करना, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और उनका पर्सनल रिकॉर्ड रखना एम्प्लॉयज़ का, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टाफिंग function. And this is also known as the human resource function, and it involves the activities like
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी एम्प्लॉयज़ को हायर करना। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, or we can say motivating the employees to perform the task असाइंड टू देम। तो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, उन्हें लीड करना, उन्हें गाइड करना, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये इन्वॉल्व रहेंगे डायरेक्टिंग फंक्शन में। एंड दिस रिक्वायर्स एन एटमॉस्फेयर दैट इनकरेजेस द एम्प्लॉयज़ टू डू देयर बेस्ट। तो यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो विलिंगली और बहुत ही इनकरेजिंग वे में काम करे। एंड मोटिवेशन और लीडरशिप जो है वो टू, आप बोल सकते हैं, की कंपोनेंट्स हैं डायरेक्शन के। एंड दिस फंक्शन इज बेसिकली कंसर्न्ड विद इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का या ह्यूमन्स का बिहेवियर जो है वेरी करेगा, डिफरेंट पर्सन हैविंग अ डिफरेंट बिहेवियर। सो उनको उनको लीड करना, उनको गाइड करना टू द राइट डायरेक्शन, और सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, और ये सारे स्टेप्स जो है आपके डायरेक्टिंग फंक्शन में इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। सो नाउ कंट्रोलिंग में क्या बोलेंगे हम कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है इन विच द मैनेजमेंट मॉनिटर्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है। तो मॉनिटर करना मीन्स टुवर्ड्स द इट इन्वॉल्व्स द स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। आप बोल सकते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड सेट करेगी, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बताएगी कि सो एंड सो प्रोडक्ट हमें इस क्वालिटी का चाहिए, इसका फाइनल जो आउटपुट है वो ऐसा होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपैरिजन करना विथ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू द करंट परफॉर्मेंस, की एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी हुई है, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट्स तैयार हुए हैं वो कैसे हुए हैं। इट डजेंट मीन कि आपने एक बार डायरेक्शंस दे दिए तो उसके बाद आप देखेंगे ही नहीं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका क्या आउटपुट है, वो किस तरह से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वैसा नहीं होता। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आप क्या करते हैं, वर्कर्स ने क्या किया, उनकी क्या गलती हुई, अगर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सही से बनाया है या नहीं बनाया, तो अगर कोई गलती है तो उसे सुधारना। एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, देन यू आर गुड टू गो। आप आगे बढ़ें, अपना फ्यूचर और ब्राइट करें। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इस फंक्शन में it is the last function of management, and in this function we can say managers जो है they try to match the actual performance with the planned performance, and if there is no match, तो अगर कोई बीच में मैच नहीं हुआ तो उस डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। सो यहाँ पे डेविएशन अगर है कोई, तो आपको क्या करना होता है, मैनेजर्स को यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स ढूंढने होते हैं उनको सुधार करने के लिए, एंड टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान, सो दैट सब के सब जो है वो पाथ ऑफ जो प्लानिंग हुआ था उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। सो कंट्रोलिंग फंक्शंस रेफर्स टू द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो आप बोल सकते हो कि कंट्रोलिंग जो है वो परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, एंड फॉलो अप द फंक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स हैं ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वन बाय वन आपके एक एक चैप्टर बन के भी सामने आएंगे। सो नाउ चिल्ड्रन वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक of your first chapter, and the name of the topic is coordination. So coordination से क्या समझ में आता है कि एक मैनेजर जो है वो जब सभी एक्टिविटीज़ जो है, सभी डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है और उसको कोऑर्डिनेशन में लाता है, या उसको आप बोल सकते हैं बाइंड करता है, द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सिंक्रोनाइज करना आप बोल सकते हैं यहाँ पर, तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। एंड इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। एंड वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो एसेंस का मीनिंग यहाँ पर आप ऐसे लेके चलें कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट
It is the most essential element of the management for achieving the harmony among individual efforts towards the accomplishment of group goals. मीन्स अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करना है और आपको सभी इंडिविजुअल सभी एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस में हार्मनी और स्मूथ वर्किंग अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन, मैनेजर्स को क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना होगा. एंड इट इज़ अ कॉमन थ्रेड, वी कैन से एक कॉमन थ्रेड है दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ एंड टू इंश्योर द कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में कंटिन्यूटी बनी रहे और सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपरली ऑन टाइम स्मूथली रन करती रहे, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. So it is, we can say, through the process of coordination that a manager ensures the orderly arrangement of individuals and group efforts. So we can say here it is the process, एक ऐसा process है by which synchronizes the manager synchronizes the activities of different departments. तो यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर चलाना एक मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही कर सकता है. और कोऑर्डिनेशन जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर्ड है और सभी डिपार्टमेंट्स में रिक्वायर्ड है, तभी काम जो है या एक्टिविटीज़ जो है वो हार्मनी के साथ स्मूथली और एक दूसरे से बातचीत करते रहने से ही इम्प्लीमेंट होंगी. ऐसा नहीं है कि हर कोई सारे फंक्शंस जो है वो अपने अपने तरीके से किए जा रहे हैं और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बिल्कुल डिफरेंटली चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता. तो सबको अपने तरीके से काम करना है. एचआर डिपार्टमेंट अपने तरीके से अगर काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने वे से काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी किसी से बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा. सभी डिपार्टमेंट्स को इंटरकनेक्ट होना होगा एक दूसरे के साथ. तो वो कैसे हो सकता है, जब मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेशन की मदद ले और कोऑर्डिनेशन के साथ यानी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ चले और सिंक्रोनाइज करे सभी के फंक्शंस को. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन जो है आप बोल सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस जो है वो स्मूथली प्लानिंग स्टेज से लेके पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेस गोल के अचीव करने तक कोऑर्डिनेशन तो है मस्ट. सो बेस्ड ऑन प्लान्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ डेवलप. तो जो भी प्लान्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तैयार किए जाते हैं उनका बेस है. स्टाफ को रिक्रूट करने से लेकर सभी प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने तक, उनके गोल्स को अचीव करने तक कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी होता है. सो हियर फर्स्ट फीचर इज़ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. तो ग्रुप एफर्ट्स के लिए आप बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, छोटी है या बड़ी है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगती है उसका नंबर ऑफ़ फैकल्टी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि उतनी ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. सो कोऑर्डिनेशन क्या करती है, इट यूनिफाइज द अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी. सो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए एम्प्लॉयज़, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट क्वालिफिकेशन स्किल्स के साथ आए हुए लोग उनके एक्टिविटीज़ को, उनके डाइवर्स इंटरेस्ट को एक रास्ते पर लेके आना, वन वे पर लेके आना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को अचीव करना, जो कॉमन गोल है सबका, उस तरफ लेके आना एक मैनेजर की ज़रूरत होती है. तो ये एक ग्रुप एफर्ट है. यहाँ पर सभी लोगों, ये ग्रुप एक्टिविटी इंश्योर करती है दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन. तो अगेन इट मीन्स दैट यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उन सब के एक्टिविटीज़ को यूनाइट करना towards the achievement of common goals and it becomes the unity in individual efforts. So we can say here कि सब अलग अलग रास्तों पर नहीं चले, यहाँ पर यूनिटी के साथ काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ चलना, मैनेजर्स जो है इस बात को इंश्योर करते हैं और सबको सेम रास्ते पर लेके आते हैं टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द नेक्स्ट वन.
continuous process. So as management is a continuous process, तो management तभी है अगर coordination है, और coordination है तो management है. So we can say कि ये continuous process है, एक दिन की बात नहीं है. Management आपको हर वक्त हर जगह करनी है. So it is not a specific activity, it is required at all levels and at every department. तो organizations में continuously आपकी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो कोऑर्डिनेशन इज़ अ नॉन एंडिंग फंक्शन एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन थ्रू which all the goals are achieved. Next one is coordination is a pervasive function. So pervasive we have already understood this meaning that pervasive का meaning था यहाँ पर कि it is universal, it is applicable everywhere. So it is universal in nature. coordination भी सब जगह apply होगा. It synchronizes the activities of all levels. और आप बोल सकते हैं कि एक it is required at all levels, and business as well as non-business organizations हो, profit non-profitable organizations हो, सब जगह आपको coordination जो है वो चाहिए. So coordination is the responsibility of all managers. So it is whether the manager is working at the top level, whether the manager is working at the middle level or the lower level, it is important at all the three levels of management. So we can say here that it is not the task of only टॉप लेवल मैनेजर्स. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है या सिर्फ मिडल लेवल मैनेजर्स का काम है. सो टॉप लेवल मैनेजर्स को भी चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट करे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ टू इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज जो बनाए गए हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरिड आउट, वो ठीक से कैरी आउट हो जाए. मिडल लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ही इज़ द लिंकिंग पेन. तो वो टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को यानी लोअर लेवल मैनेजर्स को लिंक करते हैं, तो उन्हें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. एंड सबसे जो लोअर लेवल है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स वर्कर्स. तो वर्कर्स से अगर आपको काम लेना है तो आपको वहाँ पर भी एज ए मैनेजर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स दैट दे मेक एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश द कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. सो डेलिब्रेट फंक्शन वी कैन से हेयर कि भाई यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो करनी ही पड़ती है. इट इज़ नॉट अ चॉइस कि आपको कोऑर्डिनेट करना है या नहीं करना है. सो एवरी मैनेजर हैज़ टू, वी कैन से हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हर मैनेजर को सोच समझकर और ज़रूरी है कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, हर अपने एम्प्लॉय को, हर अपने सबऑर्डिनेट के साथ वो कोऑर्डिनेट करे. सो कोऑपरेशन जो है वो वॉलंटरी हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है, इट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट कोऑपरेशन. सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है वो इंटर लिंक्ड वर्ड्स हैं, इंटर रिलेट करते हैं, लेकिन कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन may lead to waste effort, and we can say coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among the members or the employees. So we can say here that coordination is a very very important feature of management. तो function कह सकते हैं, एसेंस कह सकते हैं ऑफ मैनेजमेंट. सो कोऑर्डिनेशन कैसे इम्पॉर्टेंट हुआ कि ये सभी जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअली देखा जाए, डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए, स्पेशलिस्ट वाइज देखा जाए, सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करता है. एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को, डिफरेंट टाइमिंग्स को, डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. So coordination harmonizes the individual goals and organizational goals. So we can say it is very helpful for a manager to contribute in the growth in size of the organization, because coordination जो है it increases with the increase in size of the ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, आप देखते हैं कि उतनी ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. मोर द एम्प्लॉयज़, मोर द कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट. सो नंबर ऑफ पर्सन्स जितने वर्किंग होंगे, ईच इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की अपनी नीड्स है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग और सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉयज़. तो
इन एम्प्लॉयज़ की, सभी एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को सिंक्रोनाइज करना टुवर्ड्स अ कॉमन गोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन आप बोल सकते हैं इस, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं कि अपने ही रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी दुनिया में नहीं रह सकते वो। तो उन्हें ही इंटीग्रेट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, वो आइसोलेट होके काम नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो घूम फिर के ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट हैं। सो देर इज़ अ नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो इसलिए ज़रूरत है कि इन सब की एक्टिविटीज़ को एक साथ लेकर आए, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। सो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्यों ज़रूरी हुई, टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग द डिपार्टमेंट्स, के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डेविएशंस हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सके। Specialization can be the reason for giving the importance of coordination, how we can say, because देखिए लार्ज हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम हो या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हो, आप जो है स्पेशलिस्ट को एज ए हेड आप स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनके पास हाई डिग्री होती है, क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपर्टीज़ होता है, और वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी फील्ड के, एक्सपर्ट्स होते हैं। सो दे आर वेरी क्वालिफाइड पीपल who are working for the organization. So they feel that they are very intelligent, and they have the they always take the right decision. उनको लगता है कि वो हमेशा right decision लेते हैं, and there are number of specialists working in organization. तो हर organization में बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनको उनको भी ये रियलाइज़ करवाना कि आपको भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करना है। सो उनको भी क्या रियलाइज़ कराना, दैट there is a need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction. तो आप उनको भी common direction में लेके आएँ। सो coordination क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, coordination के थ्रू reconcile करता है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज़ को, जो स्पेशलिस्ट की डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको reconcile करता है, एंड किस वे में उनके इंटरेस्ट और ओपिनियन को कहाँ लेके जाना है, common direction में, and so as to get the maximum benefit of these specialists. So in conclusion, we can say that coordination is more important in large organizations doing different functions and having more number of specialists, experts working. So children, this is all about the first chapter, nature and significance of management.